students, this is the second class of chapter periodic classification of elements. In last class we studied about Dobriner triads, Newland law of octave, Mendeleev periodic table, and we also started studying modern periodic table. We also studied how we can find out the number of group and number of period of any element in our modern periodic table. If you have not watched that class, first you must go through that class, the last video of this class. So now we shall proceed with modern periodic table. So as you know that modern periodic table is based on atomic numbers. The periodic properties are functions of atomic numbers. So it is based on electrons, because you know electrons means atomic number. Atomic number is equal to number of electrons, and electrons means electronic configuration, that electrons are arranged in shells by electronic configuration. As you know what is electronic configuration, the number of electrons in any shell is given by 2n square. So in first shell there are 2 electrons, second shell 8 electrons, and third shell 18, 32. But there is one exception, that if there is outermost shell, अगर जिस शेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो वो आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर वाली है, तो उसमें हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपकी थर्ड शेल आउटर मोस्ट है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नीशियम में क्या होता है, फर्स्ट शेल 2, because atomic number is 12, so first shell 2, second shell 8 electrons, and third shell 2 electrons. So third shell is outermost, so it has maximum 8 electrons only. Okay, so that's how you write electronic configuration. Writing electronic configuration is very necessary, because on the electronic configuration entire periodic table is based. All the properties you will study in this table are based on electronic configuration, electrons, and the valence electrons are the most important, because valence electrons are involved in bonding. You know that covalent bond, ionic bond, which you studied in carbon compounds chapter. You studied that ionic bond, covalent bond, electron dot structure you studied, valence electrons were involved. So the number of electrons, electronic configuration is very important to study all the properties. Okay, so in last class we study how do we find group number and period number. I will revise here too. For example, if there is calcium atomic number is 20, so you write electronic configuration, first shell 2 electrons, second shell 8 electrons, third shell you can write second shell 8 electrons, and how many electrons are left, atomic number is 20, so 10 electrons. But you know that outermost shell cannot have more than 8 electrons. आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो हम थर्ड शेल में यहाँ पर भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे. सो जनरली हम ऐसे लिखते हैं 2 8, थर्ड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड देन 2 electrons, because outermost shell always contains 8 electrons only, maximum 8 electrons only. So अगर हम यहाँ 10 लिख देते, so that was not right. Okay, if the third shell electrons were more 80, like if atomic number was for example 28, then you could write 2 8 18, 2 8 18, and if how many electrons are left, if the atomic number is 30, for any element you can take with atomic number 30, in that case you could write 2 8 18 and 2. Okay, because now outermost shell has 2 electrons. But if atomic number is, as I told you, 20 calcium, then 2 8 8 and 2. Okay, so you must notice that outermost shell should have maximum 8 electrons only. So this is how we write electronic configuration of magnesium. So now you can find out that number of shell is equal to number of period. So 4 shells means it belongs to 4th period. As you can see, calcium is belonging to 4th period, and valence electrons are 2, so it belongs to 4th shell and second group. Okay, so you know that group number is equal to valence, number of valence electrons, and period number is equal to number of shells.
Okay, or in other words, you can say in a group, number of valence electrons are same. In a period, number of shells are same. Now I am taking example of one random element, potassium. Potassium belongs to which group? First group and fourth. First group and fourth period. You can see here potassium. It is belongs to first group and fourth period. Okay. So number of valence electrons are 1 and it has 4 shells. Now tell me, in a group what is same? Valence electrons. But what is different? For example, potassium and rubidium, or you can take more easier, lithium and sodium. What is the similarity and what is the difference between lithium and sodium in periodic table? The similarity is that both lithium and sodium belong to same group, but they belong to different period, right? एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप एक ग्रुप में होते हैं बट उनके पीरियड अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल, पोटेशियम का पीरियड 4 है, रुबिडियम का पीरियड 5 है. सो इन अ ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट पीरियड्स आर डिफरेंट. मीन्स पीरियड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स. सो पीरियड डिफरेंट है मतलब नंबर ऑफ शेल्स भी डिफरेंट है. सो इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम but number of shells increase by 1. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium all have same number of valence electrons, that is 1, because it belongs to first group. But hydrogen, lithium, sodium, these belong to different periods. Hydrogen is first period, lithium is second period, sodium is third period, potassium is fourth period. So its outermost shell, number of shell in hydrogen is 1, in lithium 2, in sodium 3, and in potassium 4. So you can see that in a group valence electrons are staying same but number of shells is increasing by 1 unit. Clear? In a group number of shells are increasing by 1 unit. Clear? What in a period? If we talk about period, these period rows, horizontal rows, what is same in period? For example, in third period, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus. What is same? In a period, number of shells are same. Period का मतलब होता है shells. So it is third period means it has 3 shells. So all sodium, magnesium, aluminium, silicon have 3 shells and outermost shell is 3. Third. Okay. What is different? You can see sodium, magnesium, these third period elements are belonging to third period, but they have different groups. Sodium is first group, magnesium is second group, okay, and aluminum is 13th group, silicon is 14th group. So in a period, group is increasing by 1 unit, or group increasing by 1 unit means number of valence electrons increases by 1 unit. And you also know that these are arranged in increasing order of atomic numbers. So in a period, number of shells remain the same but number of electrons increase by 1 unit. Okay, so you know that in a group valence electrons are same and in a period shells are same. What is different? What is different? In a group number of shell increases by 1 unit but in a period number of electrons increase by 1. Clear? So no need to be confused. You all have to notice that if the given elements belong to a period or a group. Okay, so now we shall proceed to periodic properties. What are periodic properties? We are going to study various properties which repeat itself after certain interval. So what are those properties? First property is size of the atom. Okay. Second property is metallic character, means the element is metallic character or having non-metallic character. Okay. Third, we will study electropositivity or electronegativity. And you should know, you have studied in metals and non-metals, that metals lose electrons. Metals form cations like sodium Na positive, calcium Ca2 positive. Metals forms
cations, so they are electropositive, they lose electrons. But नॉन मेटल्स जो होती हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, आयोडीन नेगेटिव, दीज ऑल आर नॉन metals because they are electronegative, they gain electrons. So non-metals gain electrons and metals lose electrons. So non-metals are electronegativity. So अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, और अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर रहे हैं मतलब वो मेटेलिक कैरेक्टर हो गया. ठीक है, सो दीज आर सिमिलर. There is one another property which is known as ionization energy. Although this is not much into syllabus, but still you should know what is ionization energy. It is the energy required to remove an electrons from atom. Means अगर सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, सो इस एक इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको शेल से बाहर निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी. Another example, you can take potassium. So what is its electronic configuration? 2881. Okay, so to remove one electron, how much energy is required? That is ionization energy. Okay, there is another term which is known as electronegativity. Just as I told you, electropositivity and electronegativity. So electronegativity means tendency to attract electrons, okay, gaining electrons, that is electronegativity. So one by one we will study about these properties. Before that, let's talk about trend of valency. valency का क्या ट्रेंड होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या ट्रेंड होता है, फर्स्ट स्टडी. सो देखिए, in a group, I told you in last class and in Google Meet too, that in a group valence electrons remain same. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो 5 ही उस ग्रुप में होंगे, सो वैलेंसी उसकी 3 होगी, राइट. सो इन अ ग्रुप वैलेंसी इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स. इन अ ग्रुप वैलेंसी इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स. व्हाट हैपन्स इन अ पीरियड? इन अ पीरियड, यू नो, पीरियड के एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है ना. एक पीरियड है तो उसमें सिक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, सो एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, राइट. फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन. सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5. ओके, फिर 6, 7, 8, 9, 10. ओके, सो व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ लिथियम? 3. 3 इज द एटॉमिक नंबर. ओके, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2, 1. What is the electronic configuration of beryllium? 2, 2. Here. What is the electronic configuration of boron? 2, 3. So you can see the valence electrons remain same, but valency first increases and then decreases. Okay, क्योंकि वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होती, तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं तो हम उससे 8 में से माइनस करते हैं. सो इसलिए पहले जो वैलेंसी है वो बढ़ती है अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम 1, 2, 3, बट लेटर जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं देन वी हैव टू माइनस इट फ्रॉम 8, that's why it decreases. So in a period, valency first increases and then decreases, but in a group, valency remains same. Okay, next is atomic size. देखिए, you know that period is this straight horizontal rows and group is this. Okay, or you can say period is this, group is this, right. So what happens in a period and along a group in a periodic table? This is your periodic table. Now see, how does radius, atomic size, vary in a period? Means if we move from left to right in a period, आप थर्ड पीरियड ले लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. If we move from left to right, how will the radius change? And we will also study in a group, that in a group when we move from top to bottom, how does the radius change? For example, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जब हम मूव कर रहे हैं नीचे तो रेडियस में क्या चेंज हो रहा है. ठीक है, सो हाउ विल यू नो? आपको इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये याद रखना है, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, कि ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या स्टेटस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. सिमिलरली
जो पीरियड है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. सो यू नो दैट इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ शेल्स आर डिफरेंट, right? Number of shell increase by 1 as we move from top to bottom. In a period, you know, number of shells are same but number of electrons are increasing by 1 unit, right? For example, जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है. एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये जब पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, लेकिन इनकी शेल्स सेम है. और ग्रुप की हम बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है बट एक एक शेल जो है इंक्रीज हो रही है. जैसे कि आप लिथियम का देख सकते हैं, 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें न्यूक्लियस के बाद एक शेल, दूसरी शेल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अगर हम सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 11. सो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल 1 electron. So you can see in elements of group valence electrons are same but number of shells increase by 1. इसमें 2 shells हैं, इसमें 3 shells हैं. Okay, so in a group number of shells are increasing, okay, but in a period number of electrons are increasing. Now think about this, size पर क्या फ़र्क पड़ेगा, किसका ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा साइज पर. शेल इंक्रीज होंगी तो साइज बढ़ेगा, ऑब्वियसली. अगर शेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो साइज बढ़ रहा है एटम का. जैसे कि मैं अगर एक शेल बना रहा हूँ तो साइज छोटा है, 2 शेल बना रहा हूँ साइज बड़ा है. ओके, सो साइज, ये जो शेल्स हैं किस में चेंज होती हैं, पीरियड में चेंज होती हैं या ग्रुप में चेंज होती हैं. यू नो दैट द शेल्स इंक्रीज इन ग्रुप के अंदर चेंज होती हैं. सो व्हेन इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. पीरियड में क्या होता है, पीरियड में तो शेल्स सेम रहती हैं. पीरियड में तो 2 शेल हैं तो अगले एलिमेंट में भी 2 शेल होंगी, तो साइज़ का कैसे होगा. आपको पता है पीरियड में क्या चीज़ डिफरेंट होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर फर्स्ट शेल में 2 हैं, सेकंड में 3 हैं, तो इसमें कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एग्जाम्पल ले लीजिए आप कार्बन एंड नाइट्रोजन का. ये है एक पीरियड के एलिमेंट. कार्बन में क्या है, शेल्स सेम है दोनों में, ठीक है, 2 4 राइट एंड 2 5, 2 शेल्स हैं दोनों में लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है ना. यानी अगर एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हैं, सॉरी 6 हैं, और प्रोटॉन्स भी 6 हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 7 हैं और प्रोटॉन्स भी 7 हैं. और आपको पता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. मैं आपको बोलता हूँ एक 5 पॉजिटिव चार्ज है, एक 5 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक 3 पॉजिटिव चार्ज है, एक 3 नेगेटिव चार्ज है. अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव में. मीन्स जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है. और आप बताइए कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली साइज कम होगा. क्लियरली, क्योंकि जब किसी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है ये न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली साइज विल रिड्यूस. सो हाउ विल यू से दैट इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम बट atomic number increases, so nuclear charge also increases, which increases the force of attraction between nucleus and outermost electrons, so atomic size decreases. And in a group, since the number of shells are increasing, so obviously the size is increasing. In a group, valence electrons are same. देखिए इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. टोटल इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ठीक है. न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में भी बढ़ रहा है. आप देख सकते हैं कि जो है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सोडियम का 11 हो गया, पोटेशियम का 19 हो गया, तो एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज तो इनका भी बढ़ रहा है. बट द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स outweighs the effect of nuclear charge. So group में सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे कि number of shells are increasing, nuclear charge is also increasing, but number of shells वाला जो इफेक्ट है वो हम इसमें काउंट करते हैं.
So number of shells, the increasing number of shells due to which the size increases, and in a period shells are remaining the same but nuclear charge is increasing, so size reduces. So you can see that in a period atomic size of elements decreases because nuclear charge, number of protons increases and electrons are pulled more strongly or closer to the nucleus, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के और पास आ जाएंगे और पास आने से साइज कम हो जाएगा. ठीक है. So you will write this, that nuclear charge increases, electrons are pulled closer to the nucleus. Okay. सो इन अ पीरियड अगर आपको पूछा जाए, ये जो आपके पीरियड के एलिमेंट हैं आपको पता चल गया है कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड हैं. सो इसका मतलब है कि पीरियड के एलिमेंट्स हैं. सो इट मीन्स इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, सो साइज इज रिड्यूसिंग, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज. इन अ ग्रुप atomic size of elements increases because number of shells increases, and so distance between nucleus and shells also increasing. आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये ग्रुप के एलिमेंट हैं. सो इसमें शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, सो साइज भी इंक्रीज हो रहा है. ओके. सो दिस वाज एटॉमिक साइज. आप इससे काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं इस टेबल से. देखिए पीरियड में क्या हो रहा है, देखिए साइज रिड्यूस हो रहा है. इस बॉल को देखिए, इस एटम को देखिए और ना इसको एटम को देखिए, साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. लेकिन अगर आप ग्रुप की बात करते हैं ऊपर से नीचे, तो साइज जो इन बॉल्स का है, एटम्स का है, वो इंक्रीज हो रहा है. ओके. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ नेक्स्ट थिंग इज मेटेलिक प्रॉपर्टी. मेटेलिक प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोथ हम एक ही चीज़ में पढ़ेंगे, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, और लूज इलेक्ट्रॉन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिव बढ़ जाएगा. सो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल्स फॉर्म कैटायंस. सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें अप्लाई करेंगे, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. सेम चीज़ आप अप्लाई करेंगे. पीरियडिक टेबल को देखिए, ग्रुप में और पीरियड में आपको मेटेलिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड बताना है. सो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लॉस्ट, सो व्हेन आर कैन इलेक्ट्रॉन्स बी लॉस्ट इजीली. ठीक है. आपके हाथ में कोई भी चीज़ है, कोई भी चॉकलेट है, आप उसको कब लूज़ कर सकते हो, आप उसे तब लूज़ कर सकते हो जब वो आपके हाथ में स्ट्रांगली आपने उसको ग्रैब नहीं किया हो. आपके हाथ में कोई भी चीज़ है, अगर आपने उसके हल्के से उसे पकड़ा हुआ है तो वो लूज़ हो जाएगी. ठीक है. लेकिन अगर आपने उस चीज़ को टाइटली पकड़ा हुआ है तो वो लूज़ नहीं होगी. सिमिलरली अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये लूज़ नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी. लेकिन अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सो इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव हो जाएगा, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, मैंने आपको अभी बताया था, न्यूक्लियर चार्ज पर या नंबर ऑफ शेल्स पर. सो इन अ पीरियड, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पीरियड की, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. सो इन अ पीरियड number of shells are same but number of electrons are, or atomic number is increasing, so nuclear charge is increasing. आप देख लीजिए लिथियम, लिथियम में देखिए फर्स्ट शेल सेकंड शेल, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 1 इलेक्ट्रॉन. बेरिलियम में क्या होगा, 2 ही शेल्स होंगी बट सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके. बीच में है पॉजिटिव. So nuclear charge, as we move from left to right in a period, number of shells remain the same, but nuclear charge increases. Okay, so force of attraction between nucleus and outermost electrons is increases, क्योंकि nuclear charge बढ़ रहा है तो attraction भी बढ़ रहा है. So it becomes difficult to lose electrons, क्योंकि charge attraction बढ़ रहा है तो electrons lose करने की capacity भी decrease हो रही है, और दैट्स वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज. इसका मतलब है अगर आप देखें
तो सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, इनमें से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, किसमें ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है, कौन ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स से बंधा हुआ है, सो ये लूज़ नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया था आपके हैंड का, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके हैंड में ज़्यादा स्ट्रांगली है, तो वो लूज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन सोडियम में क्या है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कम है, एटॉमिक नंबर कम है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, इसलिए सोडियम से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। सो कुछ नहीं, आपको 2 लाइन में याद रखना है, इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, सो कैपेसिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज। so in a period मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थर्ड पीरियड का एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। ओके, ग्रुप के अंदर क्या होगा, यू नो दैट ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। ओके, सो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगी तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, है ना, और दूर जाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और इलेक्ट्रॉन्स आराम से रिमूव हो जाएगा। in a group, what happens in a group, in a group number of valence electrons are same, okay, but number of shells are increasing, so force of attraction between nucleus and outermost electrons is decreasing, so electrons can be lost easily, so electropositive character increases down the group. This is written in your NCERT book too. NCERT book में अच्छे से लिखा हुआ है कि as the effective nuclear charge acting on valence shell electrons in a period increases, nuclear charge along a period increases, so tendency to lose electrons will decrease. Okay, so electropositivity will decrease, क्योंकि electropositivity tendency to lose electrons ही तो होती है, ठीक है। down the group nuclear charge experienced by valence electrons is decreasing, क्योंकि number of shells are increasing, outermost electrons are far, so they can be lost easily, और लॉस्ट ईजिली हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं एंड दे टेंड टू फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी एग्जैक्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होगा वो पॉजिटिविटी से एकदम अपोजिट होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो एटॉमिक साइज आप समझ चुके हैं, एटॉमिक रेडियस का रीजन समझ चुके हैं। इन अ पीरियड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज सो टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर, साइज रिड्यूसेस। ओके, और ग्रुप के अंदर शेल्स इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज होता है। और जब हम मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये लिखना है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता है पीरियड में, सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज। ओके, इसका अपोजिट आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप क्या लिखेंगे, इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। सो क्योंकि न्यूक्लियस स्ट्रांगली फोर्स अट्रैक्शन जो एग्जर्ट कर रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, सो न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ईजी होगा, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। ग्रुप के अंदर शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो रहा है क्योंकि शेल्स आर गेटिंग फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। कोई भी चीज़ न्यूक्लियस से दूर जा रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही होगा, राइट। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स विल रिड्यूस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सो व्हाट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, पीरियड ग्रुप में सिमिलरिटी डिफरेंस आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू lose electrons and electronegativity means tendency to gain electrons, और gain electrons जब कर पाएगा जब attraction ज़्यादा होगा, lose electrons तब कर पाएगा जब attraction कम होगा। ओके, सो यू हैव स्टडीड मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो आपको पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है अलोंग अ पीरियड डिक्रीज होता है, जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स हैं वो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जो राइट साइड में एलिमेंट है उनका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, राइट। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड these are known as metals and on the right hand side non metals.
फर्स्ट ग्रुप आपको पता है एल्कली मेटल्स बोलते हैं, सेकंड ग्रुप आपको पता है एल्कलीन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. सो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आर metals. Unlike the group 13th, 14th, 15th, these are non-metals because they are electronegative. But there is another kind of elements which is between metals and non-metals. Those are known as metalloids. What are metalloids? Metalloids have properties in between metals and non-metals, and they are separated. They can be found out in periodic table by this line. You can see there is zigzag line here. And what are these elements? Boron, silicon, arsenic, tellurium. Okay, these are metalloids. Okay, in our NCERT book we can study that left hand side are metals and right hand side non-metals are found on right hand side. Okay, and some are classified as semi-metal or metalloid because it exhibits some properties of both metals and non-metals. The borderline elements boron, silicon, germanium are intermediate and are called metalloids. Okay, so you have to remember trend of atomic size from your NCERT book. Okay, valence metal and metallic character also from your NCERT book. You have to mark the reason, this reason which is given in your NCERT book, increase in nuclear charge, you have to mark them. Okay, so in next class we will do Google Meet for your doubts. Another more point, क्योंकि देखिए मेटेलिक कैरेक्टर से काफ़ी चीज़ें अटैच्ड हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अटैच्ड है ना. इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मतलब मेटेलिक कैरेक्टर है. एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. आप याद कीजिए मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ा था आपने, आपको याद होना चाहिए कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है. ओके, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है. ठीक है, सो मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बेस पर आप बता सकते हैं कि जो ऑक्साइड है एलिमेंट का वो बेसिक होगा या एसिडिक होगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होते हैं वो कैसा ऑक्साइड फॉर्म करेंगे. आप खुद सोचिए, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड of the elements on left hand side and what is the nature of oxide elements on the right hand side. ठीक है, थिंक अबाउट दिस. मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटल के हिसाब से ही बताना है. आंसर बहुत ईजी है, मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया है. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर अबाउट द पीरियोडिक टेबल.